Hello students. So today's our topic is another business service, that is warehousing, and today's our topic is the meaning and function of warehousing. So before understanding the meaning definition of warehousing, we will study what was the exactly need of to store the goods. In every organization, in every factory, the raw material is used to convert to process into the finished product. करेक्ट. सो यहाँ पर रॉ मटेरियल की ज़रूरत और साइड बाय साइड फिनिश प्रोडक्ट को रखने की ज़रूरत, नीड, रिक्वायरमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में सामने आती है, जिसे बोला जाता है स्टोरेज ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश प्रोडक्ट्स. तो ये जो स्टोरेज है, यही स्टोरेज ठीक तरीके से मैनेज करना, उसे प्रिजर्व करना और एक्चुअल में जब उसकी रिक्वायरमेंट है उस टाइम पर वो डिमांड के अकॉर्डिंग सप्लाई करना, ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट करता है वेयर हाउसिंग सेक्शन. वेयर हाउसिंग बिजनेस सर्विस. इट इज़ अ वन टाइप ऑफ एन बिजनेस in which a warehousing provides the proper management and the safety of the storage of goods that consist of all the activities which are connected with the storage and preserving of the goods. So in this slide, the concept of warehousing is the need for storage arises both for raw material as well as finished products. ज़रूरी है हर एक ऑर्गेनाइजेशन में रॉ मटेरियल को स्टोर करना और उसी रॉ मटेरियल को स्टोर करके फिनिश प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करना, एंड अगेन दिस फिनिश प्रोडक्ट्स को भी स्टोरेज के रिक्वायरमेंट. नाउ व्हाट इज स्टोरेज? स्टोरेज इन्वॉल्व्स प्रॉपर मैनेजमेंट फॉर प्रिजर्विंग गुड्स फ्रॉम द टाइम ऑफ देयर प्रोडक्शन और परचेज टिल इट्स एक्चुअल यूज़. स्टोरेज क्या होता है? जिसमें ठीक तरीके से जो भी गुड्स हैं, रॉ मटेरियल है, उसे प्रिजर्व करना स्टार्टिंग से तब तक जब तक कि वो प्रोडक्शंस, वो गुड्स सोल्ड आउट नहीं हो जाता है, उसका एक्चुअल यूज़ के लिए वो डिमांड में, रिक्वायरमेंट में नहीं आ पाता है, तब तक उस प्रोडक्ट को स्टोरेज करना. व्हेन दिस स्टोरेज इज़ डन ऑन लार्ज स्केल and in a specified manner, it is called warehousing. और जब भी ये स्टोरेज होता है, वो भी लार्ज स्केल पर इन अ स्पेसिफाइड एंड अ सिस्टमैटिक मैनर, then that is known as warehousing. Because in every organization a limited space is there. They are busy in the production, conversion of the raw material into the finished product. So for this, big machines, plant and machinery, furniture was installed in the organization, and for that there will be no space for keeping the goods, raw material and the finished product, so that it can be able to save from the damage. तो बहुत ज़रूरी है कि ये सभी मटेरियल्स को ठीक तरीके से मैनेज करना, प्रिजर्व करना. नाउ द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ वेयर हाउसिंग. प्लेस where goods are kept is called warehouse. In a very simple term, they are explaining that the place where goods are kept, जहाँ पर goods रखा जाता है, उसे बोला जाता है warehouse. And the person in charge of warehouse is called warehouse keeper. और उस warehouse को जो person in charge है, जो मैनेज कर रहा है, जो देखभाल कर रहा है, that person is known as warehouse keeper. And a commercial building for a storage of goods. What is exactly warehouse? It is a commercial building for the storage of goods. जहाँ पर जनरली गुड्स को स्टोर किया जाता है, उस बिल्डिंग, वो भी एग्जैक्टली कौन सी बिल्डिंग कहलाती है? दैट इज़ अ कमर्शियल बिल्डिंग, जो कि बेसिकली रॉ मटेरियल, फिनिश प्रोडक्ट्स, गुड्स, प्रोडक्ट्स, इन सभी को सेफली स्टोर करने के लिए बनाई जाती है, नॉट फॉर द रेसिडेंशियल पर्पस. सो वेयर हाउसिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रॉपर स्टोरेज ऑफ हैंडलिंग गुड्स by using the scientific method and making them
available easily and smoothly when it was needed. Definition: warehousing refers to the activities involving storage of goods on a large scale in a systematic and orderly manner and making them available conveniently when needed. So in short, warehousing क्या है? वेयरहाउसिंग जिसमें वो एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व रहती है जिसमें गुड्स को एक लार्ज स्केल पर स्टोर किया जाता है इन अ सिस्टमैटिक and in the orderly manner so that whenever it is demanded requirement it can easily available and conveniently available for the peoples. This definitions means holding or preserving goods in a huge quantity from the time of their purchase or production till their actual use or sale. जब तक कि उसका एक्चुअल यूज़ या सेल्स की डिमांड रिक्वायरमेंट नहीं होगी तब तक के लिए वो फिनिश प्रोडक्ट उस वेयरहाउस में प्रिजर्व रहेगा, उस वेयरहाउस में सेफली वहाँ पर रखा रहेगा. इट क्रिएट्स द टाइम यूटिलिटी बाय ब्रिजिंग द टाइम गैप बिटवीन द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स. ये एक तरीके से एक ब्रिज क्रिएट करते हैं जिसमें इट क्रिएट्स अ टाइम यूटिलिटी जिसमें टाइम गैप बिटवीन द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन. कितना प्रोडक्शन हमारे पास में ऑलरेडी है और कितना कंजम्पशन गुड्स का हो रहा है उसके बीच में जो टाइम गैप हमारी है उससे ब्रिज में कन्वर्ट किया जाता है एंड इट क्रिएट्स द टाइम यूटिलिटी. Now in short, the meaning of warehouse converted into the ware and house. Ware means manufactured article of a specified type. वेयर मीन्स द जो मैन्युफैक्चर आर्टिकल्स है पर्टिकुलर किसी टाइप के उसे बोला जाता है वेयर. एंड अ हाउस मीन्स अ बिल्डिंग इन विच द पीपल मीट फॉर द पर्टिकुलर एक्टिविटी. एंड अ हाउस मीन्स अ बिल्डिंग जहाँ पर लोग अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग उस पर्टिकुलर एक्टिविटी को कंप्लीट कर सकते हैं. तो यहाँ पर वेयर हाउस मिला के इट रिफर्स टू द स्टोरेज ऑफ गुड्स and preserving of the goods. So in this picture, different techniques, scientific methods can be used for storing the goods in the warehouse in different sections. Now we will study the functions of warehouse. Storage, protection of goods, financing, risk bearing, grading and packing, processing, transportation, time and place utility, and the last one is price stabilization. All these functions are performed by the warehousing. First is storage of goods. So this was the main function which is to be performed by warehousing for the storage of large stock of goods, and these goods are stored from the time of their production or purchased till their consumption or use. तब तक के लिए वो प्रोडक्शन और प्रोडक्ट गुड्स वेयरहाउस में रखा जाएगा तब तक कि एक्चुअल में उसकी रिक्वायरमेंट परचेज या फिर कंजम्पशन के लिए नहीं डिमांडेड होती है. सेकेंड वन इज द प्रोटेक्शन ऑफ गुड्स. So the another function which is performed by the warehousing is to, first of all, they can store the products, they can store the commodities. Similarly, after taking the goods, taking the responsibility of goods, they can provide the protection to the goods from loss or damage due to heat, wind, dust, moisture, etc. And it makes arrangement for different products according to their nature. अब यहाँ पे कोई भी टाइप के प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, पेरिशेबल गुड्स भी हो सकते हैं, एंड फॉर दैट पेरिशेबल गुड्स दे हैव टू यूज सम डिफरेंट फैसिलिटीज़ फॉर storing and for provide protection of these types of goods. And this was the all function provided by the warehousing keeper. So it makes special arrangements for different products according to their nature. It also helps to reduce the losses,
ड्यू टू स्पॉइलेज और वेस्टेज ड्यूरिंग द स्टोरेज। यहाँ पे वेयर हाउस कीपर के फुल्ली कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन्होंने ये जिम्मेदारी ली है स्टोरेज करने की, तो वो स्टोरेज प्रोडक्ट्स जब तक कि सोल्ड या डिमांडेड या रिक्वायरमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू नहीं होता है तब तक के लिए उन्हें उस गुड्स का प्रोटेक्शन ज़रूरी है, ताकि वो कोई भी नुकसान होने से, ख़राब होने से उस स्टोरेज को बचा सके। सो दिस इज़ अ वन टाइप ऑफ वेयर हाउसिंग in which different products, different boxes are kept in a systematic manner. Now the third one is financing. Now this goods which we have stored in the warehouse, it is just like an assets. Okay, ये क्या है? It is an assets, and through that assets we can also applicable for taking the loan from the financial institution. ये एक तरीके से assets हैं जिसके बेसिस पे हम बैंक से फाइनेंस के लिए ग्रांट कर सकते हैं। So when goods are kept in a warehouse, the depositors get a receipt which act as a proof about the deposit of goods. यहाँ पे जब हम अपना गुड्स वेयर हाउस में केप्ट करते हैं तो वहाँ पे डिपॉजिटर जो है उसे एक रिसिप्ट मिलती है, एक प्रूफ मिलता है कि हमारा इतना लमसम क्वांटिटी में विद द कंप्लीट डिटेल गुड्स इस वेयर हाउस में डिपॉजिट है। एंड द वेयर हाउस ऑल्सो issues a document in favor of the owner of the goods which is called as the warehouse keeper warrant, जिसे नाम दिया गया है। एक डॉक्यूमेंट इशू किया जाता है इन द फेवर ऑफ ओनर ऑफ द गुड्स, जिसका भी वो गुड्स हैं उसके नाम पर एक डॉक्यूमेंट इशू किया जाता है और उसे नाम दिया जाता है वेयर हाउस कीपर्स वारंट। एंड द वेयर हाउस वारंट एंड रिसिप्ट, ये दो जो डॉक्यूमेंट है, इट इज़ एन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एंड कैन बी नेगोशिएटेड। मीन्स इससे जो रिलेटेड डिपॉजिट हमें देना पड़ता है, जो पे करना पड़ता है, फीस या मनी प्रोवाइड करना पड़ता है फॉर कीपिंग आवर गुड्स सेफ, इट इज़ अ नेगोशिएबल, कुछ कम ज़्यादा अमाउंट भी हो सकता है। एंड इट इज़ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मीन्स इट इज़ अ लीगल डॉक्यूमेंट which is very useful for granting the loan from the financial institution. Thus, the owner of the goods can raise finance from the bank or financial institution by using this negotiable instrument. Now, the fourth function performed by the warehousing is a risk bearing. Definitely, warehouse keeper जो है, warehousing जो एक business service हमें provide कर रहे हैं, they are taking our goods for the storage, they are taking the one type of risk in which they can save our products from the different types of risk in the form of theft, fire, destroy, etc. So the entire responsibility of goods stored in the warehouse is passed to the warehouse keeper. एक बिजनेस पर्सन अपने पूरे प्रोडक्शन, चाहे वो रॉ मटेरियल हो या फिनिश प्रोडक्ट हो, जब तक कि उसे रिक्वायरमेंट नहीं होगी तब तक वो कुछ पे करके अपने गुड्स को वेयर हाउस में कीप कर सकते हैं, रख सकते हैं, और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो टोटली उस गुड्स की उस वेयर हाउस कीपर को पास आउट कर देते हैं, सो दैट वंस द गुड्स आर हैंडल्ड ओवर टू हिम फॉर स्टोरेज। Thus, the risk of loss or damage to goods in the storage is borne by the warehouse keeper. In future में जो भी risk bear कर रहे हैं, it is totally borne by the warehouse keeper for the maintaining and preserving properly to the storage. Therefore, these types of warehouses take all the precautions to prevent the goods from any losses. यहाँ पर वेयर हाउस कीपर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हमारे गुड्स को किसी भी नुकसान होने से बचाए। दैट इज़ इट इज़ अ वन टाइप ऑफ रिस्क विच इज़ टू बी टेकन बाय द अनदर बिजनेस सर्विस विच इज़ नेम एज द वेयर हाउसिंग। नाउ द नेक्स्ट फंक्शन इज ग्रेडिंग एंड ब्रांडिंग. Warehouses also perform the function of grading and branding.
giving the name and giving the branding of the goods on the behalf of manufacturer. मैन्युफैक्चरर के बिहाफ में एक और फंक्शन वेयरहाउसिंग परफॉर्म करते हैं, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को ग्रेडिंग देना, साइड बाय साइड उसे एक ब्रांड प्रोवाइड करना. होलसेलर एंड द इम्पोर्टर ऑफ द गुड्स, किसके बिहाफ में? मैन्युफैक्चरर, होलसेलर एंड द इम्पोर्टर ऑफ गुड्स. It also provides facility for packaging of goods for the convenience of handling. हमने हमारा रॉ मटेरियल या फिर फिनिश प्रोडक्ट्स को हमने उस वेयरहाउस में केप्ट किया है, लेकिन उसके बाद में उसे प्रॉपरली ग्राइंडिंग, ब्रांडिंग, साइड बाय साइड पैकिंग करवाने का जो कन्वीनियंस है, ताकि हम इजीली उसे हैंडल करके बॉक्स पैकिंग करके मार्केट तक डिलीवर करवा सकें. तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर फंक्शन इज़ ऑल्सो परफॉर्म बाय द वेयरहाउसिंग. फॉर एग्ज़ाम्पल, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो साबुन बनाने की फैक्ट्री है, जिसमें वो डायरेक्टली सोप बना के जो प्रोडक्ट्स हैं वो प्रोडक्ट्स डायरेक्टली वेयरहाउस में स्टोर करते हैं. वहाँ पर इस प्रोडक्ट को, इस सोप को ग्राइंडिंग, नाम देना, प्रॉपरली ग्रेड प्रोवाइड करना और फाइनली उसको पैक करने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर वेयरहाउसिंग परफॉर्म करते हैं. बाय कीपिंग द बॉक्स फैसिलिटी, उस सोप को बॉक्स प्रोवाइड करना, रैप करना, पैकिंग करना एंड फाइनली उसे जहाँ पे रिक्वायरमेंट है, डिमांड है, मार्केट तक ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी के थ्रू उसे सेंड करना, डिलीवर करना. सो दिस इज़ द अनदर टाइप ऑफ वेयरहाउसिंग. नेक्स्ट इज प्रोसेसिंग. Certain commodities are not consumed in the form they are produced. जो भी प्रोडक्ट्स हमने बनाए हैं वो डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते हैं. They need some more processing. Processing is required to make them consumable. जैसे राइस जो है वो फार्मर्स के थ्रू यहाँ पे वेयर हाउस में ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू रखवा दिए जाते हैं, लेकिन उस राइस को पॉलिश करना है या फिर टिम्बर जो है वो सीज़न के अकॉर्डिंग ही रिक्वायरमेंट सामने आती है टू मेक द गुड कंडीशन. तब तक के लिए उसे ठीक तरीके से रखना है. एंड द फ्रूट्स आर रिपेंड, दैट इज़ मैच्योर, पक जाना है. कच्चे आम है, उसे भी हम स्टोर करके वेयर हाउस में रखा जाता है और पकने के बाद में उसे प्रॉपरली पैकिंग के साथ बाय गिविंग द नेम, फॉर एग्जांपल हाफूस और दशहरी, वट एवर इज द देयर नेम, बाय यूजिंग द पैकिंग और द डिफरेंट प्रोसेसिंग मटेरियल एंड द प्रिजर्विंग, दिस फंक्शन इज ऑल्सो परफॉर्म बाय द warehousing. And sometimes warehouses undertake this activity on the behalf of the owners. और बहुत बार ये वेयर हाउस इस टाइप की एक्टिविटीज़ को भी परफॉर्म करते हैं. नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्टेशन. नाउ what was the function performed by warehousing? They store our goods, they take the risk. Through their goods, the goods owner will able to take the finance. The warehouse keeper also give the function of grading and packing. Similarly, or they can provide the processing facility to convert into a consumable form after making the final product on the behalf of the manufacturer. Here they can also provide one more type of business service, that is transportation. So this warehouse can provide transport facility to the bulk depositors. जिसका भी बल्क डिपॉजिट में रहता है, काफ़ी लमसम या लार्ज क्वांटिटी में डिपॉजिट्स किया जाता है, उस पर्टिकुलर डिपॉजिटर्स के लिए एक फैसिलिटी और प्रोवाइड की जाती है जिसे ट्रांसपोर्टेशन नाम दिया गया है. इट कलेक्ट्स गुड्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन and also send goods to the place of delivery on the request of depositors. It is totally depends upon the request and the need. यहाँ पर ये फैसिलिटी वेयर हाउसिंग परफॉर्म करते हैं बाय फर्स्ट ऑफ ऑल दे कैन टेक द goods from the factory and kept in the warehouse, keep storage and preserve them, and after
the actual requirement of that product, they can finally transport these goods or deliver the goods on the request of the depositor. Again, this is also one type of a huge warehousing. Next function is the time and place utility. Warehouses creates time utility by preserving the goods till it is demanded. एक तरीके से ये टाइम को सेव करवाता है. Similarly, it also creates a place utility by providing the goods at the place where they are required. Time and place, it is a very important part of every organization, and for that they will busy in the production and they will send their products to the warehouse to create the place utility, and according to the time they will transport the products to the market whenever it is required. So this function is also performed by the warehousing. Now the last function is price stabilization. Similarly, जैसे ही प्लेस एंड टाइम यूटिलिटी की रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाएगी, वैसे ही मार्केट में उसकी रिक्वायरमेंट आएगी और उसी के अकॉर्डिंग दे विल ट्रांसपोर्ट द गुड्स. दैट मीन्स दे विल मेंटेन द डिमांड एंड सप्लाई. Warehouses plays an important role in the process of price stabilization. It is achieved by the creation of time utility by warehousing. Fall in the prices of goods when their supply is the abundance and rise in their prices during the slack season are avoided. अनवांटेड किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज हो जाना, इस डिमांड इस सप्लाई को मेंटेन करते हैं. इस वेयरहाउस के थ्रू ये फंक्शन प्रोवाइड किया जाता है ताकि मार्केट में किसी भी प्रोडक्ट की जैसी ही डिमांड आती है वैसे ही ये प्रोडक्ट को मार्केट में ट्रांसपोर्ट किया जाता है ताकि डिमांड एंड सप्लाई को वो मेंटेन कर सके, प्राइस को स्टेबल कर सके. ना ही उस प्राइस को और हमें इंक्रीज करना है और अननेसेसरी ब्लैक मार्केटिंग या फिर हमें उसका प्रॉफिट अर्न करना है. सो दिस वेयरहाउस ऑल्सो हेल्प्स इन द प्राइस स्टेबलाइजेशन. So here completes all the functions and the meaning of warehousing.